जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पास, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਹਾਨੂੰ भी गुरु जी ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। गुरु जी संगत जी, गुरु जी मैसेज ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 2-3 ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਸ਼ਟ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨੇਊ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡੁਗਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਚੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਚੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਪਤਲੇ ਟਾਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੀਤ ਸਾਰੀ ਚੜੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਐਸਾ, ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10% 15% ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਨੇਊ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੰਨੋ ਬਸ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀਓ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਨੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਡਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਮਨੋਂ ਲੱਗੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1000 'ਚੋਂ 100 'ਚੋਂ 1000 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਮਰਪਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਦਿਲੋਂ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी महाराज जी का। शुकराना शुकराना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी मुझे सत्संग करने तो नहीं आता है। मैं फर्स्ट टाइम ये सत्संग कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ ये मैं ठीक से बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं है कि मैं गुरु जी को कब से जानती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत लंबे टाइम से गुरु जी को जानती हूँ। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी आंटी जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा लाइफ कैसे बदला ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2022 में मेरी मदर का एक्सपायर कर गई थी अचानक से। उसके बाद आंटी जी मैं उसके बाद इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं मानसिक
मानसिक रोगी बन गई थी। मैं हर समय सिर्फ मैं अपनी माँ के बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे घर का, बच्चों का कुछ ख़्याल नहीं रहता था। लाइफ में शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया आंटी जी, बहुत बीमार भी रही हूँ। ये फिर भी पता नहीं गुरुजी का ही शक्ति था जो हर बार मुझे बचाते जाता था, बचाते जाता था। उस टाइम मैं गुरुजी से मिली नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ बहुत पहले से थे। मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन जो अंदर सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था मुझे। लेकिन जब 2022 में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, नहीं सॉरी आंटी जी, 2023 में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि गुरुजी हैं दिल्ली में, छतरपुर वाले गुरुजी, तुम उनका सत्संग सुनो, तुम्हारा माइंड थोड़ा रिलैक्स करेगा। मैं माइंड से बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई थी आंटी जी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। माँ से मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, और अचानक से मेरी माँ के जाने से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर जब से मैं आंटी जी गुरुजी से जुड़ी हूँ, ऐसा लगता है जैसे एक अंदर से सुकून मिल गया मुझे, जैसे माँ का कमी पूरा हो गया। जैसे माँ ख्याल रखती थी उसी तरह गुरुजी ख्याल रखते हैं। हाँ, गुरुजी मैसेज मैसेज के थ्रू बताते हैं, माँ सामने से बोलती थी, लेकिन जब गुरुजी को मैं देखती हूँ, गुरुजी के फेस को मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को ही देख रही हूँ। इतना शांति आ गया है मन के अंदर, धैर्य आ गया है, व्यवहार बदल गया है, सब कुछ लगता है बदल गया है आंटी जी। मैं बहुत दुखी रहती थी अंदर से, कभी मेरे चेहरा पे स्माइल नहीं रहता था। सब लोग बोलते थे कि तुम कभी हंसती नहीं हो क्या, तुम्हारे चेहरा पे कभी स्माइल नहीं देखते हैं। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना आंटी जी, मुझे मुझे अंदर से खुशी मिलती है। मतलब लगता है जैसे मैं अंदर से खुश रहती हूँ। पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, मैं बहुत गुस्सा करती थी, हर छोटे से छोटे बात पे चिल्ला देती थी, कुछ गलत बोल देती थी, क्या बोलती थी नहीं बोलती थी मुझे भी नहीं पता रहता था। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत बदल दिया आंटी जी, बहुत ज़्यादा बदल दिया। अब मैं कुछ बोलने से पहले बहुत सोचती हूँ कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, मैं अब गुस्सा भी नहीं करती हूँ। मतलब मैं क्या सत्संग बताऊँ आंटी जी, गुरुजी जीवन में जब से आए हैं, हर पल, हर सांस में सिर्फ सत्संग ही आंटी जी। ये सांस भी जो मैं ले रही हूँ, ये गुरुजी का ही है आंटी जी, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद ये सांस खत्म हो गया रहता, शायद सांस रहता ही नहीं। मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी। अभी मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे उतना पता नहीं है आंटी जी, मैंने क्या बोला नहीं बोला। अगर कुछ गलती मैंने बोला हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा आंटी जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। मैं फिर से एक बार गुरु जी का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। संगत जी, आज शुक्रवार है संगत जी, फ्राइडे है, गुरुवार है और शुक्राना का ही दिन है। तो आज मैं शुक्राना करने बैठे हूँ संगत जी। तो गुरु जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना है गुरु जी। मेरा शुक्राना आपके चरण में निवेदन है गुरुपा। अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऊपर से मेरा गला भी बैठा हुआ है। तो संगत जी, गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा दो दिल से सत्संग सुन और शुक्राना कर, तेरा काम बन जाएगा कलम कीता। तो आज मैं दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा हर मुश्किल का हल हो जाएगा, सत्संग दिल से छून और शुक्राना कर, फिर देख नजारे। तू हर बात में टेंशन मत ले, तेरे अंग संग मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरी जो शुक्राना मेरा है ना वो मेरे पापा की तरफ से है। आज पहले मैं अपने पापा की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, क्योंकि आज गुरुजी ना होते तो मेरे पापा का आँखों का ऑपरेशन ना होता, क्योंकि मेरे पापा का ना जो आँखों में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो मुझे हम लोगों को पता ही नहीं चला। वो गुरुजी है जो मुझे सत्संग के जरिए बताया था, वो भी नीम करौली बाबा के रूप में गुरुजी मुझे मैसेज किया था। वो एक कहानी सुनाया था कि बेटा तेरे पापा को आँखों में जो प्रॉब्लम है ना वो रेटिना का जो है ना उदाहरण पड़ गया है। तो मैंने उस दिन ही मेरे पापा मम्मी को पूछा, तो मैंने मम्मी बोला हाँ तेरे पापा को मैंने डॉक्टर के पास भेजा है देखने के लिए। फिर मेरे पापा जब आए तो मेरे पापा भी सेम कंडीशन था संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे अपने मैं सत्संग से जरिए जाना है जी, तेरे पापा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम लोग गुरुजी मेरे पापा को डॉक्टर के पास भेजा। फिर उस डॉक्टर ने चेकअप करके ना इमरजेंसी गुरुजी ने मेरे पापा को आंखों का ऑपरेशन करा दिया। संग जी नहीं हुआ, अगर जल्दी ना होता तो आज कुछ भी हो सकता था मेरे पापा का, क्योंकि कुछ दिन पहले ना गुरुजी ना आंखों के रिलेटेड बहुत सारा सत्संग मुझे सुनाया था संग जी। जब सत्संग पहली बार मेरे मोबाइल में आंखों का सत्संग फ्लैश हुआ था ना, मैं डर गई थी संग जी। उस सत्संग में टैगलाइन यही था कि बेटा जल्दी से सत्संग सुन, तेरे आंखों का रोशनी जाने वाला है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट काटा। तो मैंने वो सत्संग सुना संग जी। मुझे वही लगा था कि वो सत्संग मेरे लिए है, मेरी बेटी के लिए है, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, वो भी आंखों का चश्मा है संग जी। और मेरे भी आंखों में थोड़ा आंखों से ना थोड़ा पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा था गुरुजी मेरे लिए शायद आंखों का रिलेटेड सत्संग सुना रहा है संग जी। अब मुझे मैं क्लियर हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते हैं बेटा तेरे परिवार में सिर्फ तू ही सत्संग सुनती है, इसलिए तेरे परिवार में जो भी जिस पर ऊपर भी कष्ट होता है ना, मैं सभी का कष्ट तुझे सत्संग सुना के काट देता हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा का जो आंखों का कष्ट था वो आपने मुझे सत्संग सुना है, काटा है, छोटे में काटा है। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे पापा की तरफ से शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरुजी नहीं होता तो मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं होता संगत जी। गुरुजी ने अपना जल्दी में एक सीट उस दिन मेरे पापा सिर्फ चेकअप करने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक दो सीट है आप कर लीजिए। फिर हम लोगों ने गुरुजी मेरे पापा को बोल के उस दिन ही ऑपरेशन करा दिया संगत जी। तो अगर उस दिन ऑपरेशन करने वाला और कोई नहीं, मेरे गुरु पाए थे जो मेरे पापा को ऑपरेशन कराया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने ये भी सत्संग शेयर किया था, लेकिन ना वो ऑपरेशन के 4-5 दिन के बाद भी कल जब मैं बृहस्पतिवार का गुरुवार था, मैं जब स्कूल से आई ना, तब मैंने देखा मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब है संगत जी, क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद ना मेरे पापा का वो पॉटी का प्रॉब्लम हो गया था, नहीं हो रहा था। तो कल भी उन्होंने 2-3-4 बार 5 बार गया था, लेकिन भी नहीं हो रहा था। फिर ना मैं मैं दुकान से औषध भी लेके आई, फिर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला अगर औषध से नहीं होगा तो फिर आपको उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि उनको आँखों में ऑपरेशन हुआ है, फिर आँखों में उसका प्रेशर आ जाएगा। फिर मैंने उनको वो औषध से काम नहीं हुआ संगत जी। उनका मेरे पापा का बीपी भी बढ़ गया था और उनका तबीयत भी बहुत ख़राब लगा। वो इतना टेंशन ले रहा था ना, लेके ना उनका जो शरीर भी बहुत वीक हो गया था संगत जी। फिर मैंने अपने मौसा जी को फ़ोन किया, फिर मेरे मौसी और मौसा जी आई, फिर मेरे मम्मी मेरे पापा के लिए हॉस्पिटल लेके गए संगत जी। फिर मेरे घर में मैंने मम्मी से बोलकर मेरे पापा को गुरुजी का जल प्रसाद भी दिलाया था संगत जी। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने गुरुजी का महामंत्र भी जप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत मंत्र जप किया, मैंने मन प्रे कर रही थी, गुरु जी सब ठीक कर दीजिए, उनका ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दीजिए। फिर घर में नहीं हुआ संगत जी। फिर जब उन लोगों ने मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गई, मेरी मम्मी, मेरे मौसा जी, फिर मुझे मेरा हम लोग बहुत टेंशन में थे संगत जी। हम लोग कल स्कूल से आने के बाद हम लोग भी कुछ दोपहर का खाना भी हम लोगों का नहीं हुआ था संगत जी। हम लोग सब लोग बहुत टेंशन में थे। मैं, मेरा बहन, 2 बहनें बहुत टेंशन में थे संगत जी। मैंने गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो गुरुपा, नहीं तो हॉस्पिटल में, अभी तो हॉस्पिटल से ऑपरेशन हो के आए हैं, तो अभी तो पैसा लगा है, अभी फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो अभी भी बहुत खर्च होगा। लेकिन इतना खर्च हम लोग अभी नहीं कर सकते। फिर मेरे पास जितना पैसा था मैंने मम्मी को दे दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने इतना कमाल किया ना संगत जी, वो तो मेरे गुरुपा है ना, इतना प्यारे हैं गुरुजी। ज़्यादा वो गुरुजी ने डॉक्टर के पास जब प्रेस्क्रिप्शन हम मम्मी गए थे, जिस हॉस्पिटल लेके गए थे ना संगत जी, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन ही उन्होंने लिख रहा था। लेकिन तभी मेरे पापा का वो शरीर में ना उनका पेट में प्रेशर आया। फिर उन्होंने वहाँ पे बाथरूम जाके उनका उनका मेरे पापा का जो प्रॉब्लम था ना, पॉटी का हो गया संगत जी। डॉक्टर दिखाने नहीं पड़ा। सिर्फ गुरुजी ने इतना कम रुपये में 500 रुपीज़ में गुरुजी ने इतना बड़ा प्रॉब्लम मिटा दिया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत कृपा। लेकिन अगर मेरे पापा को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता तो बहुत बहुत बुरा होता, क्योंकि मेरे पापा का भी तबीयत भी और भी बिगड़ जाता, क्योंकि उनका आंखों में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। फिर भी इतना इतना सारी प्रॉब्लम भी मेरे पापा थकल नहीं ले सकते थे संगत जी, क्योंकि उनका अभी एज भी हुआ है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपने कल भी मेरे पापा को बहुत सारे ब्लेस किया है ना गुरुजी। तो इसके लिए भी गुरुजी आप मेरे पापा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरे पापा को हॉस्पिटल से लेके भी आई संगत जी मेरे मम्मी के साथ। तो इसके लिए भी गुरुजी आज मैं मेरे पापा की तरफ से आपके शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा मेरे पापा को जो इस आँखों में ऑपरेशन हुआ है ना, वो ऑपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं क्यों पापा को आँखों से थोड़ा वो आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मेरे मम्मी ने मेरी दीदी से बात किया है, और डॉक्टर ने बोला है कल ले जाने के लिए। गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा को, दोनों आँखों को आप ब्लेस कर दीजिए, मेरे पापा को आँखों में कुछ भी ना हो गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़, मैं जानती हूँ आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा। प्लीज़ मैं जानती हूँ डॉक्टर का काम डॉक्टर करेंगे, लेकिन गुरुजी पहले आप मेरे पापा को दोनों आँखों को ब्लेस कर दीजिए। मेरे पापा का जो आँखों का प्रॉब्लम ऑपरेशन हुआ है ना रेटिना का, प्लीज़ वो ठीक कर दिए गुरुजी, वो जल्दी से ठीक कर देना गुरुपा। आज मैं मेरे पापा की तरफ से आपके चरण में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी गुरुजी आपके अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तो गुप्त नवरात्रि चल रही है ना, तो हे माता रानी, आपके चरणों में मेरा शतकोटि निवेदन माँ, अगर मैं मुझसे कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ माता रानी आप मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, तब माता रानी भी मुझे ब्लेस कर दे। अभी तो दोनों का माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद मुझे मिलता है संगत जी। गाड़ी में दोनों माता पिता का आशीर्वाद, माँ जय माँ, ये अभी माता रानी का इतना ब्लेसिंग मिल रहा है ना मुझे। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तो मुझे 11 12 जला में भी रोज ही देखने को मिल रही है। आज भी मुझे 12 देखने को मिला, 10 भी मिला। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी एंजल नामे के थ्रू भी मुझे अपने प्रेजेंस फील करा था संगत जी, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होने वाला है, जल्दी ये सत्संग सुनर कल्याण होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तुझे मैं सपने में दर्शन देने आऊँगा और तेरे कष्ट काट दूंगा बेटी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, इतनी खुशियाँ बरसने वाला हूँ, तू संभलने ही नहीं संभल पाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा है कि तेरे घर नई गाड़ी आई है, उसमें मेरा छोटा सा स्वरूप जरूर रखना, जहाँ भी तेरे आना जाना होगा उस गाड़ी में होगा, मैं तेरे काम बनाऊंगा और तेरी रक्षा भी करूंगा, शुक्राना कर, ब्लेस किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आप ना हो तो ना आज मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ गुरु जी। पता है संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरु संगत जी, तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मैं रोती हूँ ना तब भी गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा तू रोया मत कर, अगर तू रोती है ना मुझे बहुत कष्ट होता है, तू रोया ना कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ये भी बोलते बेटा तू मेरा प्यारी थी है, तू मेरी लाडली बेटी है, मैं हर पल तेरा अंग संग हूँ, तू मेरा एहसास कराया कर। तो गुरु जी ना मुझे अपने प्रेजेंस भी फील कराते हैं संगत जी, तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ना मुझे इस नवरात्रि में गुरु जी मुझे मंदिर भी लेके गए संगत जी, माता रानी के मंदिर, तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। माता रानी आपके भी चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम, माँ आपके चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी मेरे ऊपर विपद आती है ना गुरु जी बजरंगबली के रूप में मुझे अपना दर्शन देते हैं और मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं आपकी चरण में हूँ, मेरे पापा के लिए अरदास करती हूँ गुरु जी, प्लीज़ मेरे पापा को दोनों आंखों को ही ब्लेस कर दीजिए गुरु जी, प्लीज़ मेरे पापा को आंखों पे कुछ भी ना हो गुरु जी। मैं जानती हूँ आपने मेरे पापा को आंखों को ब्लेस किया ना गुरु जी, आप ही जल्दी से उनको आंखों को ठीक कर दीजिए, जल्दी से उन्हें दोनों आंखों को ब्लेस कर देना गुरुपा। एक आंखों को तो ऑपरेशन हुआ है, दूसरे आंखों में भी मेरी आंखों में पापा का प्रॉब्लम है गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी मेरे दोनों आंखों पापा को एक हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, उनको आंखों को ब्लेस कर दे दीजिए गुरु जी। और मेरी मम्मी को तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि उन दोनों को भी बाहर जाना है मेरे बहन के पास, मेरी बहन को भी आपने ब्लेस किया ना गुरु जी, मेरी बहन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरे संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं ना गुरु जी, आप उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको अच्छा रखना गुरु जी, और सब संगत परिवार को बच्चे को हर सारी खुशियाँ दे देना, सारे बच्चे को खुशियाँ देना गुरु जी, सबको सेहत को अच्छा रखना, सबको खुशियाँ भरना गुरु जी। आप भी आपको अच्छे से सेहत का ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी। गुरु जी मैंने पिछले जन्म में जितना पाप किया है ना और इस जन्म में जाने अनजाने में जितना पाप किया है ना, आप मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरुपा, आपने मुझे सत्संग सुनाया था कि तेरा ग्रह ठीक ना है, नहीं चल रहा है, तो ये सत्संग सुन तो तेरा ग्रह ठीक कर। मैंने जब सत्संग सुना तो आपने बोला है मैं माता पिता को साथ अच्छे से व्यवहार करना, उनके चरण में हर टाइम अच्छे से बिहेव करना। तो प्लीज़ गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं मेरे मम्मी के साथ मेरा इतना क्यों लग जाता है, मैं छोटी छोटी बातों में मेरे मम्मी से मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरे मुँह से उल्टा सीधा भी निकल जाता है। प्लीज़ गुरु जी आप आज मैं कान पकड़ आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता भी आप ब्लेस कर दीजिए। और मेरे पापा अगर मुझे भूल चूक हुई तो मैंने भी पाप किया है गुरुपा, अब मुझे माफ़ इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। जय
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुबा मेरे पापा का दोनों आंखों के रिपोर्ट ठीक करना गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी सब ठीक हो जाए, मेरे पापा को ब्लेस कर दीजिए गुरु पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी कमर के दर्द को आपने मेथी के तेल से ठीक किया गुरु महाराज जी, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे ही पता है गुरु जी कि जब मैं काम करती थी तो ठीक था, लेकिन जब मैं बेड पे लेटती थी और उठती थी ना संगत जी, गुरु जी जानते हैं, मेरे गुरु पिताजी या फिर मैं जानती हूँ कि मुझे कितना पेन होता था। मुझे पता है गुरु जी ने इसमें भी मेरे ही कष्ट काटे, पर गुरु जी सॉरी संगत जी, वो दर्द सहन करना बहुत मुश्किल था। बहुत दिन हो गए थे मैं मेडिसिन के बिना थी। एक दिन तो बहुत ज़्यादा था कि मुझे दवाई लेनी पड़ी, तो मेरे गुरु पिता से अरदास करी कि गुरु जी मेरे को पेन किलर नहीं खानी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मैं हाथ जोड़कर पैर पड़कर गुरु महाराज जी को बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। इसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी हमारे लिए इतना करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इनके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। आप मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेटते हुए बेड पे उठते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि संगत जी जब हमारा शरीर ठीक होता है फिर हमें कुछ चाहे 50 काम बताए हम बार बार उठ के कर सकते हैं, लेकिन जब हमें दर्द हो कोई बोलते ही कर वो कर, करना तो पड़ता है संगत जी। बच्चे वाला घर है, बच्चों के घर में करना पड़ता है, लेकिन हम गुरु पिताजी जानते हैं कितनी मुश्किल थी मुझे। तो शुक्राना गुरु जी हर किसी संगत के लिए गुरु जी कि अब तक इसको ये इस मेथी की ऑयल की ज़रूरत हो। हर किसी को दर्द होता है गोडों में, किसी भी जोड़ों में, कहीं भी दर्द है संगत जी, आप उसको गुरु जी महाराज जी का नाम लेकर लगाइए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अरबों बार खरबों बार अनगिनत शुक्राने गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी। और गुरु जी एक जो हमारे साथ में कोई आंटी है, वो कभी किसी चीज़ पीछे लड़ती है, कभी किसी पीछे, मतलब उसको थोड़ा टोका टोकी की बहुत ज़्यादा आदत है। गुरु पिताजी आप जानते हैं कि बच्चे कोई चीज़ सहन नहीं करते, पर फिर भी हम बच्चों को बोलने नहीं देते हैं। गुरु पिताजी कल भी वैसे ही थी, लेकिन मैंने उसको टोका। सॉरी गुरु पिताजी कि मैंने, आप बोलते हो ना कि तुम कुछ मत कह, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सॉरी गुरु पिताजी, पता नहीं शायद आपने ही बुलवाए होंगे मुझसे कि मैंने इसको समझाया कि बाहर बेटा बोतल क्यों गिराएगा, हमारे घर में डस्टबिन छोड़ के बेटा कॉलेज जाता है तो वो क्यों करेगा। संगत जी मुझे पता है कि हमारे बच्चे ऐसे काम नहीं करते, बस वो ऐसे ही पीछे पड़ जाती है। तो खैर कल कुछ उसके बेटे ने उसको अंदर ले गया कि मम्मी चलो, उसको पता है कि मेरी मम्मा लड़ाकी है, थोड़ा नेचर उसका तेज है। गुरु पिताजी मेरे किसी को गुस्सा दिलाने का या किसी को दुखी करने का, हर्ट करने का कोई मन नहीं था गुरु महाराज जी, लेकिन मुझे उसको कुछ कहना पड़ा क्योंकि वो हर रोज़ ही तंग करते रहते हैं। तो गुरु पिताजी बस आप ही संभालना, इन ऐसे लड़ने वाले लोगों को हमसे दूर कर दीजिए गुरु महाराज जी। जहाँ भी जाएँ वो बस खुश रहें गुरु जी, मैं ये नहीं कहती, वो टोने टामन सब कुछ करते रहते हैं गुरु पिताजी, बचाएं उनसे। हमारे ही तो दीवार लगती है उनके साथ। तो मैं गुरु महाराज जी ने बोला कि ओम बनाया कर, मैं हाथ से फिंगर से ऐसे ही ओम बनाती रहती हूँ दीवार पे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इन लोगों से बचाने के लिए। गुरु पिताजी बोल रहे हैं मैं साथ हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। बेटे की फुंसी ठीक कर दी, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। बस उसको फ़ोन की आदत छुड़ा दीजिए गुरु पिताजी। और उसको, मुझे पता है बाकी तो आपने सारे तरक्कियों के रास्ते उसके खोल रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरु जी। डॉगी को भी ब्लेस करें, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, हाँ मेरा बहुत मन है गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में गुरुपा की बेटी का कोटि कोटि बार नमन। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शुक्रवार संध्या वेले कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी।
गुरुजी महाराज, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। हर वेले हमारा और हमारे बच्चों का इतना ध्यान रखते हो गुरुजी महाराज कि आप एक खरोंच तक नहीं आने देते गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी महाराज। हर दिन हर रात मेरे गुरु महाराज की कृपा से अच्छे से बीतते हैं, हर रात अच्छे से सोते हैं। हर दिन गुरु महाराज के दर्शनों के साथ, गुरु महाराज के कृपा के साथ शुरू होता है और गुरु महाराज की कृपा से खूब अच्छे से बीतता है। उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हर पल गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं और हमें बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। गुरुजी महाराज की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। संगत जी, 3-4 दिन पहले गुरुजी महाराज कई दिनों से मुझे सत्संग सुना रहे थे कि बेटी तेरे किचन में खतरा है, संभल के रह। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे किचन में क्या खतरा है। संगत जी, मैंने वो सत्संग नहीं सुना, उसके लिए सॉरी मेरे गुरु महाराज, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, एक दिन अचानक से मेरे गैस का जो बटन है वो टूटकर मेरे हाथ में आ गया और संगत जी गैस चली हुई थी। वो टूटने की वजह से संगत जी उस पूरी गैस में और खटके में एकदम से आग लग गई और मैं वहीं पर चाय बना रही थी। लेकिन संगत जी, एकदम से मेरे अंदर से जहन में से आवाज़ आई कि बेटा सिलेंडर में से गैस को बंद कर। और संगत जी, मैंने तुरंत सिलेंडर में से गैस को बंद किया। तो संगत जी, ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है जो मुझे गुरुजी महाराज ने बताया। सारी गैस में आग लग गई थी, बटन में आग लग गई थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से एक बड़ा हादसा होने से बच गया और हम सब गुरुजी की कृपा से सेफ हैं। उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। वरना तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। और बाबा जी ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरुजी महाराज, इसी तरह हम बच्चों के साथ हर पल रहना, हर पल हमारे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना। गुरुपा, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते गुरुपा, क्योंकि आप हो तो हम हैं गुरुपा, वरना तो हम नहीं हैं। हर पल आपका अंग संग होने का एहसास मैं करती हूँ। कुछ भी गलत नहीं होने देते आप गुरुपा। गलत होने से पहले ही आप सब ठीक कर देते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। इसी तरह अपने बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, बनाए रखना। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मेरा हमें मतलब
मेरा एक सपना है कि मेरा खुद का एक अपना घर हो, जो मतलब संगत जी हमारा घर तो है, वैसे मेरे ससुर जी ने हमें सभी को घर बना के दे रखे, पर मतलब वो तो एक हिस्से में है, पर अपनी खुद की मेहनत से घर होना चाहिए, ऐसा मेरा सपना है। और जो कि मेरी दुकान भी मेरी जेठ जी के घर में है, हमारी दुकान शॉप संगत जी, जिससे मुझे टेंशन रहता है। मेरी शॉप बहुत अच्छी चलती है संगत जी, और मतलब आज नहीं तो कल हमें खाली भी करवा सकते हैं, जिससे मुझे हमेशा एक टेंशन सा रहता है कि मतलब खाली करवा देंगे तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे रहने के लिए। तो हमारे बहुत सारे घर है संगत जी, कहीं पे भी रह सकते हैं, पर दुकान जहाँ जमी होती है वहीं हो तो अच्छा है। पर तो संगत जी मैं गुरुपा से यही अरदास करती थी, हमारे घर से एक घर मतलब सटा हुआ एक घर है जो बिल्कुल रोड के करीब है, और रोड मतलब रोड पर ही है वो मकान। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती थी कि गुरुपा मुझे ये वाला मकान आज नहीं तो कल, मुझे दुकान के लिए बस इतना ही मुझे मिल जाए तो उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना हो जाएगा संगत जी। गुरुपा मुझे ये घर अभी तो मेरे पास वैसा नहीं है, पर आप कैसे भी करके मुझे ये घर दिलवा देना गुरुपा। तो संगत जी मैंने गुरुपा से मतलब हिंट मांगा कि गुरुपा अगर अभी इस समय में तो मैं नहीं खरीद सकती, और गुरुपा चाहे तो दिला भी सकते, वो तो कैसे भी करके गुरुपा व्यवस्था कर सकते। पर मैंने बोला गुरुपा से कि गुरुपा आज नहीं तो कल पर ये घर मुझे मिले तो मुझे हिंट दो। अगर ऑरेंज कलर की तितली स्वरूप में मुझे दर्शन होंगे, जो हमेशा गुरुपा मुझे हिंट देते हैं जिस तितली स्वरूप में, तो संगत जी मुझे गुरुपा ने बोलते से ही थोड़ी ही देर में मुझे मेरे सामने से ऑरेंज कलर की, जो गुरुपा का ही स्वरूप में मानती हूँ हमेशा से, जब भी मुझे मैंने गुरुपा को पुकारा था उस रूप में मुझे गुरुपा ने मुझे हिंट दिया है। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने अचानक से ऐसे आके दर्शन दिए और मेरे सामने ही गुजरी, 2-3 बार गुजरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तसल्ली मिल गई संगत जी, मेरी टेंशन दूर हो गई कि नहीं अभी तो हम सेफ है, अभी तो हमें नहीं खाली करवाएंगे, पर आने वाले समय में खाली करवाएंगे तो हमें हमारे ग्रुप में घर दिलवा देंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतना बड़ा हिंट दिया उसके लिए बहुत शुक्राना ग्रुप। कैसे कैसे ये घर हमें दिलवाएंगे वो हमें नहीं पता, उस ग्रुप आ जाने ग्रुप आई पे मैंने ये बात छोड़ रखी है संगत जी। कैसे भी करके गुरु पर मुझे दिलवाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। मुझे इस बात की मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, बस उस पल का इंतज़ार करना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतना बड़ा हिंट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना 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 गुरुपा। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे घर में गुरुपा ने सत्संग के बार बार मैसेज आ रहे कि पुत्र तो सत्संग करने की तैयारी कर, सत्संग में ये लंगर प्रसाद बनाना है, ये भी मुझे गुरुपा ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। दो मन से मैं थी संगत जी करूँ कि नहीं करूँ, तो मुझे गुरुपा ने बोला कि ऐसा नहीं सोचने का, सोच मैंने तेरे मन में जो थॉट डाला है उसको पूरा करो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। 2 घंटे का तो नहीं पर मैं 1 घंटे का करूँगी, ज़रूर करूँगी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है कि मुझे गुरुपा ने जो एक नई वैकेंसी निकली है हमारे गांव में, उसकी पोस्ट भी खाली है संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे फॉर्म भी डलवाया है, जो तुम्हारी जॉब लग जाएगी ये भी बोला है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी करोगे आप करोगे,
और जो मेरे लिए सही होगा वही करोगे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मैं क्या किसी भी चीज़ की मतलब गुरुपा से जिद नहीं करूँगी, हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, जो गुरुपा चाहे वो। और दूसरा ये कि संगत जी, मेरा अभी 1 डेढ़ महीना पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था संगत जी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और अभी फिर से मेरे गुरुपा मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र जो हुआ उससे भूल जा, भूल जो होगा वो करिश्मा होगा। अब तेरी गोद सुनी गोद फिर से मैं तेरी भरने वाला हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी झोली भर दोगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो पहले मेरे मतलब मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी, तो गुरुपा अब ऐसी कोई रुकावट न आए। देना हो तो गुरुपा मुझे पूर्ण बच्चा ही देना, पूरा देना गुरुपा, और ना हो सके तो मत देना गुरुपा, पर अधूरा मत देना। यही अरदास है मेरी आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, सारी संगत में जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। सारी संगत में अगर कोई गलती हो तो माफ करना। उसको पहला मंत्र जाप कर दी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। 4:57 ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, शिव चालीसा गुरु जी ने करवाया मेरे को। जपजी साहब का पाठ ते सुखमनी साहब का पाठ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शिव पुराण की कथा कई दिन हो गए सी मैनू पढ़ नहीं पा रही सी। गुरु जी माफ करना, कर नहीं पा रही सी कोई भी। बस एक जोत बत्ती करती सी टाइम टू टाइम, वो भी लेट हो जाता सी सुबह। जी गुरु जी माफ करना। बच्चे आए हुए सी, रात में सौंदे नहीं सी, फिर वो अख नहीं खुलती सी मेरी भी। सॉरी, माफ कर दो गुरु जी। ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ लक्ष्मी थे मैं जो आवागा। जय गुरु जी, स्वागत है, जरूर आना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट सी, मैंने टालिया। जय गुरु जी, इसी तरह कष्ट टालते रहना। जय जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा परम्पार है। गुरु जी कृपा करना, कृपा बनाए रखना, इसी तरह कृपा करते रहना। गुरु जी बच्चियां ते कृपा करना, उन्होंने सतबुद्धि देना। गुरु जी हर पल मैं यही अरदास करदी हाँ गुरु जी तुहाडे मूहरे, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਪਾਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੁੜੀਆ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਟਾਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਟਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी।